Hello learners, in today's video we are going to do Of Their Slaves and Of Their Marriages by Thomas More. So first we will talk about Sir Thomas More, 1478 to 1535. He was an English statesman, lawyer, humanist scholar and writer. He was best remembered for his political philosophy and his enduring work, Utopia, which was published in 1516. He worked with King Henry VIII, and he became the Lord Chancellor of England, but later refused to accept the king as a head of church, and because of this was put in prison and executed in 1535. And 1535 was the year when he died. So सर थॉमस मोर जो है वो एक लॉयर, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर और राइटर थे. यूटोपिया विच इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल फिलोसफी इनकी वन ऑफ द बेस्ट वर्क है जो कि 1516 में पब्लिश हुई थी. इन्होंने किंग हेनरी एट के साथ काम किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट इनको लॉर्ड चांसलर बनाया गया था इंग्लैंड का. बट लेटर व्हेन किंग बिकम द हेड ऑफ चर्च इन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और इस वजह से इनको इम्प्रिजन किया गया एंड देन एग्जीक्यूट कर दिया कंट्री से इन 1535. नाउ वी विल लर्न अबाउट यूटोपिया. Why Utopia is important? Because this chapter of their slaves and of their marriages is part of this book, Utopia. Utopia is published in 1516. Written in Latin, it is political and philosophical book describing an imaginary island society where there is no private property, work is shared, justice is fair, and people live in peace and equality. यूटोपिया ओरिजिनली लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है एंड दिस इज़ अ पॉलिटिकल एंड फिलोसफिकल वर्क. इस वर्क में थॉमस मोर ने एक इमेजनरी आइलैंड की बात करी है जहाँ पे वो उस आइलैंड के रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर रहा है अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी. इन दिस पर्टिकुलर सोसाइटी विच इज़ यूटोपिया, यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है. लोगों का वर्क जो है वर्कलोड दैट इज़ शेयर्ड, जस्टिस इज़ फेयर इन दैट सोसाइटी और लोग वहाँ पे इक्वालिटी और पीस के साथ रहते हैं. ये जो बुक है यूटोपिया ये दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट द corruption, greed and equality of 16th century Europe, and the second book present the ideal commonwealth of Utopia, showing how reason and communal living can create harmony. So the first book criticize the current scenario of Europe and second book present the ideal commonwealth, ideal things of Utopia. So Utopia is both a social critique and a vision of an ideal society, bleeding satire with serious humanist thought. So you can say that here in Utopia you can clearly see the humanist point of view of Thomas More, जिसमें वो सोसाइटी के ह्यूमनिस्ट पार्ट सोसाइटी के ह्यूमनिस्ट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं. बट ऑफ कोर्स यूटोपिया जो है वो एक इमेजनरी आइलैंड है, इमेजनरी सोसाइटी है. सो ही काइंड ऑफ ट्राई टू क्रिटिसाइज द करंट यूरोपियन सिनेरियो और इसके थ्रू इमेजिनेशन के थ्रू ही वॉज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज current European society. Now we come to the first part of their slaves. In Utopia, Thomas More described that Utopian do have slaves, but their system is very different from the slavery seen in Europe. So in this part, थॉमस मोर जो है वो स्लेव्स का जो एस्पेक्ट है यूटोपियन सोसाइटी में उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि व्हाट दे हैव रूल्स फॉर स्लेव्स. So first we will talk about who will become slave in utopian society. So first, the people who commit serious crime in utopia such as adultery or repeated disobedience are made slaves instead of being executed. So ऐसे लोगों को आप क्रिमिनल वहाँ पे बोला जाता था यूटोपिया में जो या तो अडल्ट्री में इन्वॉल्व है या फिर वो किसी क्राइम को रिपीटेडली कर रहे हैं. नाउ दे आर बीइंग मेड बीइंग स्लेव नॉट एग्जीक्यूटेड. मतलब वहाँ पे स्लेव बना दिया जाता था, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता था. लाइक थॉमस मोर को एग्जीक्यूट किया गया था उनके टाइम पे, पर यूटोपिया में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था. Foreigner captured in war are also turned into slave.
सो जो फॉरेनर कैप्चर किए जाते थे वॉर के टाइम पे, अदर कंट्री के जो लोग होते थे उनको स्लेव बना दिया जाता था. Sometimes poor people in other country voluntarily choose to become slave in Utopia because life there is still better than their poverty at home. तो यू कैन सी कि यूटोपियन आइलैंड की इतनी अच्छी कंडीशन थी स्लेव्स की वहाँ पे, कि जो डिफरेंट कंट्री के लोग थे, जो गरीब लोग हुआ करते थे, वो यूटोपिया में आके स्लेव बनने के लिए रेडी थे बिकॉज दे डोंट वांट टू सफ़र द पॉवर्टी in their country. What is this life of slaves in Utopia? So they are forced to do the hardest physical labor such as digging ditches, killing animals और cleaning dirty work. तो उनको फिजिकल वर्क के लिए ज़्यादा दिया जाता था काम, उनको फिजिकल लेबर ज़्यादा दिया जाता था. सो द वर्कलोड ऑफ स्लेव्स आर फिजिकल लेबर, मतलब उनको फिजिकली बहुत ज़्यादा काम दिया जाता था. एंड दे आर ट्रीटेड स्ट्रिक्टली नॉट क्रूअली. स्ट्रिक्टली उनको ट्रीट किया जाता था, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट थे. पर यूटोपियन लोग जो हैं वो स्लेव्स के लिए क्रूअल नहीं थे. इफ़ द स्लेव सोज रिपिटेंस एंड इम्प्रूव, यूटोपियन में सेट हिम फ्री. अगर स्लेव खुद को इम्प्रूव करता है तो यूटोपियन जो है वो उसको फ्री कर देते थे. नाउ द मोरल आइडिया ऑफ दिस पार्ट ऑफ देयर स्लेव्स is that Moore shows that punishment in Utopia is corrective, not destructive. Instead of killing criminals, society reformed them through useful labor. This reflects Moore's humanist thinking. So, ये जो पूरा आइडिया है स्लेव्स का, इसमें मोर जो है वो ये बताना चाहते हैं कि हाउ पनिशमेंट फॉर स्लेव्स वो होना चाहिए उनको करेक्ट करने के लिए, ना कि उनको डिस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको बिगाड़ने के लिए, उनको उनके एग्जिस्टेंस को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि उनको करेक्ट करने के लिए पनिशमेंट दी जानी चाहिए. एंड इंस्टेड ऑफ किलिंग देम, उनको मारने के बजाय सोसाइटी को उनको उनके लेबर को यूज़ करना चाहिए और उनको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए. सो यू कैन सी द ह्यूमनिस्ट थिंकिंग ऑफ मोर हियर क्लियरली. Now we come to of their marriage. Marriage in Utopia is described with both strict rules and some surprising custom. So, of course, the rule for marriage is also very different in Utopia. So, the first rule about marriage is the age. For the man, it is 22, and for the woman, it is 18. Some rules are there before marriage. So, the first rule is that premarital sex is forbidden and punished if discovered. If the partner is involved physically with each other or anyone else, तो उसको पनिश किया जाता था. जैसे कि मैंने ऑफ द स्लेव्स में बताया है कि अडल्ट्री में इफ़ यू आर इन्वॉल्व तो आपको स्लेव बना दिया जाएगा. कपल मस्ट सी ईच अदर नेकेड बिफोर मैरिज विथ एल्डर्स एज विटनेसेस, विच इज़ काइंड ऑफ वियर्ड, बट ही गिव द रीज़न ऑल्सो कि कपल जो है वो एक दूसरे को नेकेड देख लें शादी से पहले in the present of witnesses. And why? Because अगर witness होंगे तो they will witness this thing कि उनके टाइम पे, मतलब जब when couple are seeing each other naked, there is no adultery happened. The reason is that beauty can deceive. So both partner must be sure about each other's body and health before committing. So why More give this idea about marriage? So that both partner can see each other kind of transparently, so that there is no doubt about each other, they have no doubt about each other, and they will know कि वो किससे कमिट करने जा रहे हैं. they already know this कि वो किसको कमिट करने जा रहे हैं मैरिज. ओके, बिकॉज मैरिज इज़ वेरी सीरियस थिंग इन यूटोपिया. Adultery is taken very seriously. The guilty person is made a slave. If both partner commit adultery, they cannot remarry anyone else. अडल्ट्री जो है वो बहुत सीरियसली लिया जा रहा है यूटोपिया में. द रूल्स अबाउट अडल्ट्री इज़ वेरी सीरियस, एंड इफ़ एनी पर्सन इज़ गिल्टी फॉर अडल्ट्री तो उसको स्लेव बना दिया जाता है. एंड इफ़ बोथ ऑफ द पार्टनर इन मैरिज दे कमिट अडल्ट्री तो वो किसी और से शादी नहीं कर सकते हैं. If we see the importance of marriage in Utopia, so marriage is the foundation of Utopian society. मतलब वो इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं मैरिज को कि दे सी मैरिज एज अ फाउंडेशन, कि अगर मैरिज नहीं है तो यूरोपियन सोसाइटी भी नहीं है. इट इज़ रिस्पेक्टेड एज द सैक्रेड बॉन्ड दैट इंश्योर ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड मोरालिटी. सो यू कैन सी कि मैरिज को कितनी वैल्यू दी जा रही है, कि उसको एक सैक्रेड बॉन्ड की तरह देखा जा रहा है.
there's a point of divorce and remarriage. Divorce is allowed only in rare cases like adultery and unbearable behavior of your partner. डिवोर्स तभी अलाउ है यूरोपिया में जब आपका पार्टनर जो है वो अडल्ट्री में इन्वॉल्व होता है या फिर उसका बिहेवियर जो है वो अनबियरेबल हो जाता है. द सेनेट विच इज़ अ काउंसिल मस्ट अप्रूव योर डिवोर्स. ठीक है, तभी आप डिवोर्स ले सकते हो या फिर आप रीमैरिज का कुछ कर सकते हो. विडोज़ एंड विडोअर्स में रीमैरी. अगर कोई विडो है या कोई विडोअर है तो वो शादी कर सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ वेरी ग्रेट idea. Now, if we see the significance in Utopia, this section shows how More imagined a society with strict discipline but rational justice. मोर जो है वो एक ऐसी सोसाइटी इमेजिन कर रहे हैं यूटोपिया को जो स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन में, बट एट द सेम टाइम दे सर्व यू जस्टिस. स्लेवरी इज़ यूज्ड एज अ रेशियल ऑपरेशन like in later history but as a form of punishment and social correction. So slavery को ऐसा racial oppression भी दिखाया गया है, बताया गया है, पर it has a form of punishment एंड सोशल करेक्शन के लिए यूज़ किया गया है स्लेवरी को. लाइक यू कैन सी कि बाद में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे लोगों को स्लेव बनाया गया है, पर यहाँ पे यूटोपिया में इट इज़ सोन एज द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड सोशल करेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो लोग स्लेवरी को. मैरिज रूल्स रिफ्लेक्ट द ब्लेंड ऑफ मोरालिटी, प्रैक्टिकलिटी एंड सोशल कंट्रोल ओवर यूटोपिया. मैरिज जो है वो ये दिखा रहा है कि कैसे यूटोपिया में दे आर वेरी मच thoughtful about moral values, practical values and social control. It also revealed More's criticism of corruption in European society, where punishment was often death and marriage was filled with dishonesty. So you can see कि कैसे वो slaves के through और marriage के through he was trying to criticize European society, because at that time जो corruption है वो अपने peak पे था यूरोप में, एंड मैरिज वॉज ऑल्सो फिल्ड विथ डिसऑनेस्टी. मैरिज जो है वो बहुत ऑनेस्टी के साथ लोग नहीं स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ. इन शॉर्ट यू कैन से कि थॉमस मोर्स यूटोपिया प्रेजेंट अ सोसाइटी वेयर स्लेवरी रिफॉर्म क्रिमिनल instead of destroying them, and where marriage is controlled and respected to ensure honesty, disciplined and stability. तो यहाँ पे he was giving the idea of slavery, जहाँ पे क्रिमिनल को मारा नहीं जा रहा है, उनको ब्रूटल पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, इंस्टेड उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है और मैरिज को कंट्रोल किया जा रहा है, उसको रिस्पेक्ट दी जा रही है ताकि उस मैरिज में ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और स्टेबिलिटी बनी रहे. I have also mentioned some important quotes from this chapter. Why? Because अगर आप अपने एग्ज़ाम में आंसर शीट्स में कोट्स मेंशन करते हो किसी भी आंसर में, तो you will kind of make a good impression to the examiner. So try to memorize some quotes from the important text, like this text. So the first quote I have mentioned here: they make their slaves of male factors taken from among their own people, such as are condemned of heinous crime. Second, they use them not only as boundments but also a continual example of wickedness kept them before the eye of other. The last quote is about marriage. They account marriage to be very holy bond and therefore not to be broken for any light cause. So this is about of their slaves and of their marriage by Thomas More. If you have any query, any doubt about this topic or any particular topic, you can comment below. And there is a link of my Telegram channel in the description. You can follow me there and have a nice day.